Assalamu alaikum students. Today we have revision of all the worksheet including in your syllabus. Students, today we will start the revision of different topic from different chapters. First of all, I will explain how to prepare and solve your paper. In exam, you will get two papers. One from the objective paper and one for subjective. In objective paper, you get MCQs, fill in the blank, true and false, reasoning question answer and some diagrams. For the preparation of objective paper, first of all, practice all the objective from your book, worksheets and workbook. I am repeating, all the exercises from your book, worksheets and workbook. स्टूडेंट, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली आपकी वर्कशीट्स और वर्कबुक से आएंगे. ठीक है, तो वर्कबुक को अच्छी तरह आप लर्न कीजिएगा. टुडे वी विल डिस्कस ऑल वर्कशीट फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर. आपने डिफरेंट चैप्टर से जितने वर्कशीट्स किए हैं आज इसको रिवाइज करेंगे. ओके, ओपन योर कॉपी, ब्रिंग योर कॉपी. अपनी कॉपी लेकर आइए. आपके पास वर्कशीट्स लगी हुई होंगी. अगर आपके पास वर्कशीट इस वक्त नहीं है, आपने मिसप्लेस कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज अच्छी तरह कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ हो जाए. ओके, चैप्टर नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग. चैप्टर नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग. मल्टीपल चॉइस है आपके पास. ठीक है, नंबर 1, व्हाई डज अ spark from a firework not hurt very much if land on your hand? तो ये क्यों नहीं होता? करेक्ट आंसर इज सी. द स्पार्क हैज लिटिल हीट एनर्जी. ओके, नंबर 2, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल. यस, करेक्ट आंसर इज जूल. Number 3, which of these does the kinetic theory not explain? Kinetic theory किस बात को explain न करती है? Heat coming from the sun. Number 4, what happens when one of the metal bar is heated? B answer is correct है. Molecule at the heated move faster than at the other end. अगर आप एक तरफ गर्म करें तो उसके molecules जो हैं वो गर्म होने के बाद move करते हैं. Number 5, what is the name of the continuous circulating stream of water set up inside a kettle when it is heated? Correct answer है combustion current. True and false. जी, number 1 बहुत easy. You can still burn your tongue on a cup of tea even though it may not be very hot. Yes, it is correct. Number 2, heat is measured with a thermometer? No, false. When water change from ice to liquid, the total mass of the water never change. True. A short metal spoon is better for straining hot soup than a long metal spoon. No, it is false. Heat can only be carried by conversion in liquid and gas. False. ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको शो कर रही हूँ. अगर जिन बच्चों के पास मिसप्लेस हो गया है वो आप इसमें से डायरेक्टली याद कर लीजिए. ओके, टर्न ओवर द पेज. अब आप आइए, चैप्टर नंबर है आपके पास 6. जी, चैप्टर नंबर 6, सिंपल केमिकल रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग केमिकल रिएक्शन. क्या लिखेंगे आप? वर्ड इक्वेशन. Word equation. Number 2, changes can be divided into two groups. Changes can be divided into two groups. Number 3, carbon dioxide is heavier than air. Number 4, the rusting of iron. The rusting of iron is also a synthesis reaction. Number 5, thermal decomposition is the use of heat to break down a compound. Number 6, photosynthesis in an example of endothermic reaction. Number 7, when one chemical reaction causes a sequence of reaction to occur, it is called chain reaction. Number 8,
The anhydrous copper sulfate changes from white to blue. White to blue. Number 9. Glucose contain the elements carbon, hydrogen and oxygen. Glucose के पास तीनों एटम होते हैं. ठीक है. Number 10 is very easy. Oxygen is a 1/5 part of the air. ठीक है ना, 1/5 पार्ट, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन गैस नहीं है, हमारे पास बहुत कम अमाउंट में होती है. दैट इज़ अबाउट 1/5 पार्ट ऑफ द एयर. सर्कल द करेक्ट आंसर. इट इज़ वेरी इजी. आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ईजली आप कर लेंगे जी. नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज? करेक्ट आंसर डी. वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स. नंबर 2. इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच आर द रिएक्टेंट? कौन सी चीज़ है वो रिएक्टेंट है? तो आपका आंसर आएगा, आप पहले इक्वेशन देखिए, आयरन प्लस सल्फर गिव आयरन सल्फाइड. तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा? आयरन एंड सल्फर. आयरन एंड सल्फर इज अ रिएक्टेंट. जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आयरन एंड सल्फर. बी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर इन कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए आप, यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. 3 चीज़ें हैं. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3. आइस मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 1. लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू इट. It is true. Number 2. During a displacement reaction, one substance combines with another substance to make completely new substance. Answer is wrong. False लिखेंगे आप. Number 3. To burn a fire need only fuel, oxygen and heat. Yes, it is correct. किसी चीज़ को भी जलाना हो तो हमें फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए. Number 4. Decomposition is a breaking down of single compound into 2 or more simple product. Yes, it is true. Number 5. Glucose is a fuel used by human body to produce energy. Yes, it is correct. बिल्कुल सही आपका आंसर है. अब आप आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर. आप ओपन योर कॉपी. नेक्स्ट चैप्टर हमने किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 2, प्लांट एंड देयर सिस्टम. प्लांट एंड देयर सिस्टम. फिल द ब्लैंक्स हम करेंगे. नंबर 1 है डैश कवर द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. प्रोटेक्टिव टिश्यू या एपिथेल, आप इसको एपिडर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लिखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू. नंबर 2. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. नंबर 3. वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब्स. ठीक है ना, जाइलम में वाटर मूव करता है. नंबर 4. ट्रीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ठीक है ना, दरख्त बहुत लंबे लंबे होते हैं. नंबर 5. द वर्ड जाइलम कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलॉन. नंबर 6. ईच स्टोमेटा हैज 2 guard cells. Number 7. Flaccid cell give no support to the plant wilt. ठीक है ना. Number 8. Pollen grain contain the male reproductive cells. Number 9. The stalk of the flower is called filament. Number 10. एप्पल ब्लॉसम फ्लावर हैव अ स्वीट स्मेल. ये तमाम जो है वो आपकी बुक से, आपकी मुख्तलिफ़ जगहों से हम पिक करते हैं, लेकिन अगर कहीं बीच में से बुक में से भी आपके फिल द ब्लैंक्स आ सकते हैं. ठीक है, तो आप डिड यू नो वाले कॉलम ज़रूर पढ़िएगा. मल्टीपल चॉइस बहुत ईजी. विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? रूट. नंबर 2. वॉट डज द स्टेम ऑफ अ प्लांट डू? जी, स्टेम क्या करता है? नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड हो गया है. व्हाट डज द स्टेम ऑफ द प्लांट डू? करेक्ट आंसर सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड. नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ऑर्गन? वो कौन सी चीज़ है जो प्लांट ऑर्गन नहीं है? करेक्ट आंसर इज पॉलन. पॉलन इज प्रोड्यूस इनसाइड द फ्लावर. ठीक है ना. व्हाट आर वेस्कुलर बंडल मेड अप ऑफ? तो वेस्कुलर बंडल किस चीज़ से बने होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. नंबर 5. द जॉब ऑफ रूट हेयर इज इंक्रीज द एरिया ऑफ रूट, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स.
Number 1, an organism is something that is able to survive on its own. Yes, खुद survive कर सकते हैं. So this is a true. Xylem tissue carries water and mineral from the leaf to the root of the plant. Xylem tissue carry water and mineral from the leaf to root. अब यहाँ पे देखिए leaf to root लिखा हुआ है, leaf to root लिखा हुआ है, that is wrong. रूट से लीफ में जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स. ठीक है ना. वैसे जाइलम टिश्यू तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये रूट से लीफ में लेके जाते हैं. नंबर 3, फ्लोएम इज डेड टिश्यू, जाइलम इज अ लिविंग टिश्यू. नो, दिस इज रॉन्ग. Sugar solution can go up and down in phloem at the same time. Yes, this is a true. A growing plant root tip is protected by root cap. Yes, it is true. ठीक है. ओके, टर्न ओवर द पेज. नेक्स्ट पेज आप खोलिए. आपके पास कौन सा चैप्टर आ रहा है? चैप्टर नंबर रेस्पायरेशन, चैप्टर नंबर 8 है आपके पास. ठीक है, रेस्पायरेशन चैप्टर नंबर 8. सर्कल द करेक्ट आंसर. जी, नंबर 1, रेस्पायरेशन टेक प्लेस ओनली इन. करेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे? ऑल सेल, तमाम सेल में रेस्पायरेशन होती है. ठीक है. नंबर 2, विच 2 थिंग्स आर नीडेड फॉर एरोबिक रिएक्शन. एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. सी वाला आंसर सही. नंबर 3, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन. Correct answer is B, carbon dioxide, water and energy. Number 4, in which part of a cell does respiration take place? जी, ज़्यादातर रेस्पायरेशन, सारी रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. Anaerobic respiration can only take place in plants and animals. अब ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाइए. नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ट्रू. The body gets its energy from the chemical reaction called respiration. Yes. Number 2, the amount of carbon dioxide breathed out is about the same as the breathed in. No, false. ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड. Mitochondria are found in all living cell where respirations take place. Yes, this is a true. Number 4, lactic acid is sort of halfway stage between oxygen and carbon dioxide. No. Number 5, yeast can respire aerobically with oxygen and anaerobically without oxygen. Yes, this is a true. अब आ जाइए फिल द ब्लैंक्स है, जो बहुत आसान है और आपको सारे आते होंगे. नंबर 1, मसल सेल्स कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे हैव टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. नंबर 2, yeast is a microscopic fungus. Yeast is a microscopic fungus. Number 3, mitochondria are found in cell cytoplasm. ठीक है, सेल लिखने के बाद आगे साइटोप्लाज्म लिख दीजिएगा. नंबर 4, ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स. रेस्पायरेशन भी आप लिख सकते हैं और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स. ब्रीदिंग जो है ना वो लंग्स के अंदर होती है. ठीक है. नंबर 6, रनिंग फास्ट इज एन एनारोबिक एक्सरसाइज. सॉरी, नंबर 5 रह गया था. मोस्ट प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर एरोबिकली. Number 6, running fast is an anaerobic exercise. There are more than 2,000 kilometers of blood vessels, bronchioles, and in a tiny thin wall air sacs called alveoli. क्या कहते हैं इसको? Alveoli. Number 9, fermentation has been used for baking and brewing. यानी ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करती है ना. ठीक है, तो आप इस कोने पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में और फर्मेंटेशन लिखिएगा. नंबर 10, ऑक्सीजन गोज फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8. अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज आ चैप्टर नंबर आपके पास है 9. चैप्टर नंबर 9, एसिड एंड अल्कली. जी, क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एन एसिड. किसके पास एसिड होता है? करेक्ट आंसर इज विनेगर.
Number 2, which of the following pH number indicate a strong acid? Number 1. G. Correct answer is 1. Number 3 पे आ जाइए. Which of the following pH number indicate a strong alkali? सबसे ज़्यादा strong alkali number 14. Number 4, which of the following pH number indicate a neutral substance? नंबर 7. बेटा अगर आप चाहें तो आप रिकॉल कर सकते हैं पीएच स्केल, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ समझाया हुआ है. नंबर 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, और अगर आप कम नंबर की तरफ जाएं, 1 की तरफ आएँ, तो ये सारा जो है वो आपके पास एसिड है. और अगर 7 से ऊपर आप जाएं, 14 तक जाएं, तो ये आपका यहाँ पे अल्कली. ठीक है ना. तो सबसे ज़्यादा 14 नंबर है, सबसे कम नंबर 1 है, तो ये एसिड है और ये अल्कली है. नंबर 7 जो है वो न्यूट्रल होता है. Number 5, what is a produce when an alkali is added to a strong acid? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, अब आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. नंबर 1, ऑरेंजेस एंड लेमन आर सॉर बिकॉज दे कंटेन वीक एसिड. यस, ट्रू. Fizzy drink are made by adding nitrogen gas to the drink upper pressure. False. Fizzy drink are made by adding nitrogen gas नहीं होती ना, याद आ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. The strength of an acid is measured by its pH. Yes, true. Magnesium oxide is a salt. False. Pure water has pH 7. Yes, it is true. अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है और उसके नाम भी लिखे हुए हैं ना. ये आपको हमने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इनके नाम इनसे मिलते जुलते होते हैं. ठीक है. व्हाट डू ऑल ऑफ द एसिड हैव इन कॉमन? सबके पास क्या चीज़ है कॉमन? जी, एचाइन. ठीक है. व्हाट डू ऑल द अल्कली हैव? तमाम अल्कली के पास क्या चीज़ मौजूद है? ओ एचाइन, है ना. ओ एचाइन नज़र आ रहा है ना आपको. ठीक है. हाउ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफर फ्रॉम द अदर 2 अल्कली शो इन द टेबल? आंसर क्या लिखेंगे? इट कंटेन एचाइन एज वेल. इट कंटेन एचाइन एज वेल. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के पास एचाइन भी मौजूद है. नंबर 4 क्वेश्चन, विच 2 थिंग्स आर प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट विद एन एल्कली? बहुत आसान आंसर है, आप पहले भी कर चुके हैं, सॉल्ट एंड वाटर. अच्छा, ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ. ये रिएक्शन ऊपर वाला आप अगर आप देखें, इसको देख के आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंबाइंड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव यू अ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. बेटा मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, यहाँ से आप अगर सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लोराइड्स का सेकेंड पार्ट इसके साथ ज्वाइन करें. इसका फर्स्ट पार्ट कैल्शियम को इसके सेकेंड पार्ट से ज्वाइन करेंगे, तो आपका आंसर तकरीबन सही बन जाता है. जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट. ठीक है ना. तो आप अगर इक्वेशन के ये टर्म्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ईजिली इनके नाम याद हो जाएंगे. सो कंप्लीट योर इक्वेशन. ठीक है. ओके, टर्न ओवर द पेज. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. जी, आपका चैप्टर नंबर है अब आपके पास चैप्टर नंबर 10 लाइट. चैप्टर नंबर 10 लाइट. सर्कल द करेक्ट आंसर. हाउ डज लाइट ट्रेवल? इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नंबर 2, विच ऑफ दिस मटेरियल कैन लाइट ट्रेवल थ्रू? करेक्ट आंसर, ट्रांसपेरेंट. Number 3, which of these is translucent? Correct answer, grease proof paper. Number 4, what is the scientific name for the flat mirror? Correct answer is plane mirror. Number 5, rough surfaces reflect light. A answer, in all direction. True and false. Number 1, light travel faster than sound, that's why you hear thunder before you see the flash of lightning. फॉल्स लिखेंगे आप. नंबर 2, ग्लास एंड perspex sheet are transparent material which let light through. Yes, it is a true.
Number 3, a shadow is formed when an opaque object is put in front of a beam light. Yes, it is correct. Number 4, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. No, this is wrong, क्योंकि रिफ्लेक्शन में होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना. रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क होता है. Your image is a mirror is not what you look like. Yes, it is true. ठीक है, डिफरेंट नज़र आता है. अब आ जाइए, अब आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ, है ना. अच्छा, विच रिफ्लेक्ट लाइट, कौन कौन सी चीज़ें लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी? ग्लास, स्नो एंड वाटर. विच एब्जॉर्ब लाइट, कौन कौन सी चीज़ें लाइट एब्जॉर्ब करेंगी? कोल, ट्रेसिंग पेपर. विच आर ट्रांसपेरेंट, क्या चीज़ ट्रांसपेरेंट है? ग्लास एंड वाटर. विच आर ओपेक? कोल एंड स्नो. विच आर ट्रांसल्यूसेंट? ट्रेसिंग पेपर. ये आपके पास जितने सब लिखे हुए थे उसमें से आपने उसको फिल किया, ठीक है. इट इज़ वेरी इजी, आसानी से आप कर सकते हैं. देन लास्ट आपके पास चैप्टर है, एंड द नेम ऑफ द लास्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, चैप्टर नंबर 11, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ double circulation. Number 2, what organ pump blood through the circulatory system? वो कौन सा organ है जी? heart. Number 3, which type of blood vessel carries blood away from the heart? arteries. blood लेकर जाती है, ठीक है ना. why is blood that flow from the lungs to the heart bright red rather than the dark red? bright red का क्यों होता है? because B answer is correct, oxygen make it red. Number 5, what is the circulatory system? Correct answer is it is a transport system. अब आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स में, बहुत आसान दिए हुए हैं. ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड द हार्ट बीट. यस, ट्रू. नंबर 2, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स. नो, फॉल्स. Arteries have thick muscular wall to cope with the high pressure of the blood as leave the heart. It is true. Veins are narrower than arteries and have thinner walls. No, false. Capillaries have valve in them to keep flowing in the right direction. No, this is a wrong. Capillaries में valve नहीं होते, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए. Arteries carry blood away from the heart. Number 2, plasma is a straw-colored liquid. Number 3, blood takes 30 seconds to go once around the body. Number 4, the right atrium has thin wall. The right atrium has thin wall. Number 5, antitoxin breakdown toxin. ठीक है. नंबर 6, द हार्ट इज अ पम्प मेड अप ऑफ मसल्स. नंबर 7, valve stop blood going back into the heart. White blood cell eat the microbe that cause disease. Dead red blood cell are removed from the blood by liver. Red blood cell contain chemical called hemoglobin. ठीक है. अब आ जाइए लास्ट पोर्शन. आपके पास कुछ करेक्ट वर्ड जो है साइड पे लिखे हुए हैं और आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के आगे इसको फिल करना है. ये आपके पास वर्ड बैंक दिए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जाम में वर्ड बैंक दिए हुए हों, आपको अपने पास से खुद भी लिखना होगा. जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हेल्प ब्लड टू क्लॉट, प्लेटलेट्स, जॉइन विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, वाइट ब्लड सेल, स्ट्रॉ कलर लिक्विड, प्लाज्मा, break down poison into the blood, antitoxin, made in the bone marrow, red blood cells, chemical that kill microorganism, एंटीबॉडीज़. ठीक है. तो आपके पास ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में ये वर्ड बैंक दिए हुए, आपको खुद भी ये फिल करना आना चाहिए. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन नंबर 1. इसमें हमने तमाम वर्कशीट को रिवाइज़ किया है. प्लीज़ इसको अच्छी तरह लर्न कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.